Hmm. Good evening, everyone. So yesterday we have already read about motion, different type of motion. Okay, their examples also. So today we will study that how to represent motion graphically. Okay, so graphs provide a convenient way to see the data. Okay, suppose if any cricket match is there. So if you want to know about the run rate, okay, of each over. So it's very convenient to see it with the help of a graph. Okay, it's very convenient to see with the help of the graph. Next is you have studied in mathematics a straight line graph help in showing the linear equation having two variables. ठीक है, तुमने मैथ्स में ऑलरेडी ये पढ़ा होगा कि सॉरी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की हेल्प से हम कैसे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं यूजिंग टू वेरिएबल्स. ठीक है, एक्स एंड वाई टाइप ऑफ इक्वेशंस यू माइट हैव रेड. ठीक है, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स आल्सो. ठीक है, हाउ, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, डिस्टेंस टाइम टाइम ग्राफ जो है बेटा, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, here we take the distance and along x-axis we take the time. ठीक है, so whenever there is uniform motion, beta, uniform motion can be shown like this also and it can be shown like this also. ठीक है, remember it, uniform motion. Uniform motion mean uniformly accelerated motion. Okay, so here you can see the diagrammatic representation of the uniform motion, distance time graph of an object moving with a uniform speed. Okay, so here you can see it is traveling equal amount of distance in equal amount of time as taught to you yesterday. जैसे हमने कल पढ़ा था. ठीक है, जितना टाइम वो ले रहा है उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, अब with the help of this time distance time graph we can also you know कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम इसकी हेल्प से ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने यूनिफॉर्म मोशन में कितना डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेंगे? दो पॉइंट लेने पड़ेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ. ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे एस टू. एस मतलब डिस्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट इज S1. This is your T2 and T1. So the speed will be equal to S2 minus S1 divided by T2 minus T1. ठीक है, कंसिडर कर लो तुम्हारा S2 है 60, ये तुम्हारा S2 है 60. ठीक है, एंड हेयर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, और तुम्हारा S1 है 20. तो S2 माइनस S1 you have to do 60 minus 20. T2 minus T1 again 60 minus 40, like this you have to do and then you have to calculate. ठीक है, next is distance time graph for non-uniform motion. Now just by looking at the graph only you get to know कि ये non-uniform motion है. देखो, क्योंकि कहीं पे ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कम टाइम में. ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कहीं पे कम कर रहा है, कहीं पे अगेन बहुत ज्यादा कर रहा है. ठीक है, so this will be called a non-uniform motion, distance time graph for a car moving with non-uniform speed. The distance time graph for a motion of a car is shown in figure 8.4. Okay, this is non-uniform motion. Note that the shape of the graph is different from earlier distance time graph. Earlier distance time graph कैसा था? ऐसा था बेटा. ठीक है, and if it is like this also then also it is uniform motion. But if it is like this then it is object is at rest. Object move ही नहीं कर रहा है. ठीक है, next is velocity time graph. Velocity time graph for what? For uniform motion of a car. This is velocity beta, not distance time graph. Okay, velocity time graph for a uniform motion. Okay, so here you can see. Okay, this is a rectangle, right?
This is a rectangle. So using velocity time graph, okay, you can find out the distance traveled by the car. How? देखो, time. So the distance moved by the car in time t2 and t1 can be expressed as s is equal to distance. ठीक है? तो area of a rectangle क्या होता है? Area of a rectangle. Tell me in the chat box. Hurry up. जल्दी बताओ. गुड. ओके. तो लेंथ अगर तुम यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर इसको कंसिडर कर लो, ठीक है, देन इट इज 40 किलोमीटर. ठीक है. AC is equal to 40 kilometer multiply by CD. ठीक है. Where is CD? This is CD. CD. Okay. तो CD को हम क्या लिख सकते हैं? Final time minus initial time also. T2 minus T1. Okay. And then 40 किलोमीटर, T2 minus T1 किलोमीटर. Okay. So ABCD ये जो शेडेड एरिया है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल सकते हैं. ठीक है. नाउ you can also determine the distance moved by a car from its velocity time graph also. The area under the velocity time graph gives the distance, magnitude and displacement. ठीक है. With the help of velocity time graph. ठीक है. velocity time graph की हेल्प से भी तुम क्या कर सकते हो? किसी कार का ट्रैवल्ड एरिया कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? ये देखो, ये तुम्हारा क्या शेप है? ट्रापीजियम है ऊपर. ठीक है. रेक्टेंगल है एंड देन ट्राइंगल है. ठीक है. तो ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम. ठीक है. तो शेडेड एरिया ट्रेपीजियम ही कहलाता है. ठीक है. अब क्या बोल रहा है ये, कि ये जो तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी ई. ठीक है. व्हाट इज द एरिया अंडर ए बी सी डी ई? हियर दैट इज योर ट्रेपीजियम. ए बी सी डी एंड ई. Okay. So how you can do it? You just apply the formula of area of a rectangle first, ABCD, and then area of a triangle. Okay, length into breadth, then half into length into height. Okay, like this you can find the area of a trapezium. ठीक है. So simply तुम्हें values put करनी है and then you will calculate the distance traveled by the car. ये देखो, ये जो तुम मोशन देख रहे हो बेटा, ये नीचे की तरफ आ रहा है. दिस इज नोन एज द नेगेटिव रिटार्डेशन. ठीक है. अगर तुम ब्रेक दबाओ तो एक्सेलरेशन कम पड़ जाएगी. दिस इज नोन एज द नेगेटिव रिटार्डेशन. Figure 8.7 shows a velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with the time, while it shows the velocity time graph representing the non-uniform variation of the velocity of the object. Try to interpret the graphs. ठीक है. तो हम ग्राफ देख के ही आइडिया लगा सकते हैं बेटा कि जो तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसा है. यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेरी कर रहा है, नेगेटिव रिटार्डेशन है, एक्चुअल में है क्या. ठीक है. अब यहाँ पे देखो तुम, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. तो बेटा देर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है. v is equal to u plus at. Second is s is equal to ut plus half at square, and third is 2as v square minus u square. ठीक है. So v here represent बेटा फाइनल वेलोसिटी. क्या बताता है v? फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. u क्या बताता है? इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी. a is your acceleration. ठीक है. t is time taken. These terms you should know. ठीक है. t is your time taken and s is the distance traveled. ठीक है. एंड s के ऊपर अगर ऐसा एरो लगा हो, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट.
ठीक है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑल्सो, वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना है, ठीक है, दोनों को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इक्वेशन इज नोन एज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, क्या बोला जाता है उसे, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। सो तीनों की तीनों इक्वेशंस के लिए बेटा डायग्राम सेम ही रहेगा, तो ये डायग्राम तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, ये डायग्राम, ठीक है, दिस डायग्राम शुड बी देयर ऑन योर फिंगर टिप्स। अब यहाँ पे तुम अगर देखोगे, फ्रॉम ए टू बी देर इज मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इसे ज्वाइन कर लिया, ताकि ये क्या बन जाए, एक ट्रापीजियम बन जाए, ये वाला शेडेड एरिया, ठीक है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस डायग्राम में बेटा इक्वेशन को समझने से पहले तुम्हें कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, ठीक है, वो चीजें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए, this point, this this point, what is written here, u is your initial velocity, so a point here represent the initial velocity. Now see the point e, here you can see the v mean, v mean final velocity, ठीक है, final velocity, oc, oc over here, very good, okay, oc over here represent the time, oc is the time, oe from here to here, OE is equal to BC, ठीक है, which is equal to V. Again I am saying OE is equal to BC, which is equal to V, final velocity, ठीक है, OA. When I am saying OA, so your eye should be on here, ठीक है, OA is equal to BC here, BC, ठीक है, which is equal to time, ठीक है. So if I say OE, so OE we can call it as final velocity also. OA we can call it as initial velocity also. OC minus AD, which will represent T. OC minus AD, ठीक है, which represent T, ठीक है. Now next is, look at the equation, ठीक है. Let us draw AD parallel to the OC. Now you have to see in the diagram, ठीक है. BC is equal to BD plus DC is equal to BD plus OA, ठीक है. So BC तुम्हारे किसके बराबर है, V के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी, OA इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है. तो V को हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू भी पुट ऑन कर सकते हैं, BD प्लस U, तो BD इज इक्वल टू V माइनस U, ठीक है. अब हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, acceleration is equal to v minus u by t, ठीक है. So v is equal to u plus at, ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, which is also known as velocity time relation, v is equal to u plus at. तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन. तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसको तुम्हें ब्रोकन फॉर्म में लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबी. ठीक है, ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ ए टी ए डी इंटू बी डी. अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, ओ ए क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, यू, ओ सी क्या कंसिडर कर रहे हैं, इज इक्वल टू ए डी विच इज इक्वल टू टी, टाइम, ठीक है, एंड बी डी इज इक्वल टू ए टी, ठीक है. सो
वंस यू पुट द वैल्यूज हियर, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, u इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू एटी स्क्वायर। तो t टू टाइम्स है तो उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो यू गॉट द सेकंड इक्वेशन ऑल्सो, विच इज पोजिशन टाइम रिलेशन। पोजिशन टाइम रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ग्राफ बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स आते ही हैं, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस कर भी लेनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। सो हियर यू हैव टू टेक सिंपल फॉर्मूला ओनली फॉर द ट्रेपीजियम, ठीक है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम? This is your formula for trapezium. You can jot down. Area is equal to half a plus b into height. ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ग्राफ में ट्रेपीजियम की हाइट ये है, ठीक है। इसको ट्रेपीजियम की हाइट बोला जाता है, ठीक है। एंड दीज आर द टू साइड्स। तो तुम्हें ये दोनों को सम अप करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओसी को मल्टीप्लाई करना है। अब ओसी है क्या बेटा तुम्हारा, टी है, ठीक है। ओ ए क्या है, ओ ए इज इक्वल टू यू। बीसी क्या है, बीसी वी है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ओ सी, ओ सी अगेन टी, ठीक है। सो एस विल बी इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। एंड टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए, ठीक है। अब ये टी की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे पुट ऑन कर देनी है। सो व्हाट यू विल गेट, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। एंड देन what you will get by putting the value of t over there, v minus u divided by a। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, s इज इक्वल टू v प्लस यू प्लस v माइनस यू डिवाइडेड बाय टू ए। अब तुम्हें पता है मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, s इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू, विच इज योर थर्ड इक्वेशन, okay, which is your position velocity relation। समझ में आया, यस और नो? समझ में आया? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके फाइन। ये भी हो गया हमारा। नाउ न्यूमेरिकल्स। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, so a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and second the distance traveled by the train attain the velocity। ठीक है। so जब भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स आए बेटा, सबसे पहले तो एग्जाम में लिखो व्हाट इज गिवन टू यू, ठीक है। तो इनिशियली द ट्रेन वाज नॉट मूविंग, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है तुम्हारे पास, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, then 20 मीटर पर सेकेंड, एंड देन टाइम इज 5 मिनट, ठीक है। तो पहले मिनट को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में, क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। फाइनल कितना था, 20 मीटर, इनिशियल 0 मीटर, ठीक है। एंड 30 सेकेंड is the time taken. So after calculation, you will get this answer 1/15 meter per second square. From equation 8.7, ठीक है, we know that 2as is equal to v square minus u square, that is equal to v square minus 0, ठीक है। So what we get,
एस डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि यू तो हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। सो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट द आंसर 10, ठीक है। तो ऐसा ही स्टेप में एग्जाम में भी सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज a car accelerate uniformly from 18 kilometer per hour to 36 kilometer per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car, ठीक है। तो तुम्हें गिवन पहले लिख लो, इनिशियल, फाइनल, टाइम टेकन, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, एंड यू गेट द आंसर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, from equation 8.6 we have s is equal to ut plus half at square. So 5 meter per second inverse, 5 second plus half into 1 meter per second and 5 second square. 25 plus 12 meter is equal to 37.5 meter. The acceleration of the car is 1 meter second square and the distance traveled is this, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल एक बार प्रैक्टिस कर लेने हैं, जब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगी, ताकि जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज करूंगी, ठीक है, ताकि तुम प्रिपेयर रहो एग्जाम के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर द ब्रेक्स अप्लाई टू द कार। ब्रेक्स अप्लाई होगी बेटा, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन कम हो रही है। उस केस में तुम्हें क्या लेना है, एक्सेलरेशन को माइनस में लेना है, ये याद रखना। जब भी ब्रेक आ रही है या नेगेटिव रिटार्डेशन है, तुम्हें माइनस में वैल्यू पुट ऑन करनी है। फॉर्मूला सेम है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट वैल्यू का ध्यान रखना है, माइनस में पुट ऑन करनी है। फिर नहीं बोलना है कि मेरा आंसर तो डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो माइनस में वैल्यू पुट ऑन करनी है। देन फ्रॉम इक्वेशन 8.6 फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, एच इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हाफ ए टी स्क्वायर, और वैल्यूज पुट ऑन करके यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन भी यूनिफॉर्म हो सकता है, यस और नो? Okay, see here it is written. Can you think of an example when object does not change its magnitude of the velocity but only changes its direction? और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या चेंज हो जाएगा, बताओ जल्दी। वेरी गुड तनिष्का, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। क्या हो रहा है बेटा, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है, तुमने पढ़ा होगा मैथ्स में, टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक प्लेस पे क्या हो रहा है, तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। हेक्सागोनल में 6 प्लेसेस पे तुम्हारी डायरेक्शन चेंज होगी, ऑक्टागोनल में 8 प्लेसेस पे तुम्हारी वेलोसिटी चेंज होगी, और सर्कल में तो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें दिया भी गया है v इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू बताओ जल्दी। हम्म, गुड। कई बार एग्जाम में मेंशन भी होती है, ठीक है, वो ऑलरेडी बोलते भी हैं तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है टेंजेंट के लिए, कि अगर मान लो तुमने धागे से एक पत्थर बांधा और तुम उसको घुमा रहे हो, ठीक है। अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो ये यहाँ से इसी डायरेक्शन में निकल जाएगा, विच इज नोन एज द टेंजेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर बेटा। So if you have any doubt you can ask me,